Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to start unit number 9, My Robots Misbehaving. In this lesson, we will learn about learning grammar. In the previous period, we learned about understanding what we read and spelling and vocabulary. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start. Open page number 73. Please take your pencil, write CW and today's date is 30 December 2020. Day is Wednesday. Match the following words with their meanings. This row: chores, claims, furniture, laundry, misbehaving, neglects. And this row: number A, chairs, tables and beds. Number B, clothes to be washed. C, not doing the right things. D, does not do. E, says. And F, work to be done by a person. So, chores. Correct the match. F, work to be done by a person. किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला काम मीन्स चोर्स. क्लेम्स मतलब कुछ कहना. सो करेक्ट मैच ई, सेज. नंबर 3, फर्नीचर. द करेक्ट पेयर ए, चेयर्स, टेबल्स, बेड्स. दीज आर फर्नीचर्स. नंबर 4, लॉन्ड्री. द आंसर इज बी, क्लोथ्स टू बी वॉश. कपड़े धोने के लिए. Number 5, misbehaving. The correct answer C, not doing the right things. मतलब कुछ भी काम सही तरीके से प्रॉपर प्लेस पे ना करना. Neglects. Number 6, answer is D, does not do. Neglects मतलब ध्यान न देना, अवॉइड करना. ओके. एंड does not to do मतलब कुछ भी नहीं करना, उसके तरफ ध्यान नहीं देना. ओके. Now next, learning grammar. In this exercise, we will read about present continuous tense. Okay, present continuous tense. The present continuous tense tells us that an action is going on right now. We use am, is and are as helping verbs with verbs ending in ing to show such actions. The present continuous tense tells us that action is going on right now. Present continuous tense हमें बताता है कि अभी एक एक्शन चल रही है. ओके. एक्शन हैपनिंग नाउ मतलब अभी एक्शन हो रही है. We use am, is and are as helping verbs with the verbs ending in ing to show such actions. हम am, is और are इन helping verb के साथ main verbs के ending में ing लगाकर action चल रही है यह show करते हैं. Okay, understood? Like this, I am running, I am writing. Okay. I am clapping, I am eating. मतलब जो क्रिया चल रही है, जो एक्शन चल रही है. ओके. एक्शन हैपनिंग नाउ अभी जो क्रिया चल रही है कंटिन्यूस में, वो जो टेंस बताता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. लुक एट राम. ही इज रनिंग सो फास्ट. ही इज रीचिंग द फिनिशिंग लाइन. The other boys are running behind him. The children are clapping for him. I am clapping for him also. Why are you not clapping for him? Okay. Look at Ram. राम की तरफ देखो. He is running so fast. वह इतनी तेजी से भाग रहा है. ओके. मतलब वह फास्ट रनिंग कर रहा है. He is reaching the finishing line. वह फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रहा है मतलब क्रिया चल रही है. ओके. एक्शन हैपनिंग नाउ. द अदर बॉयज आर रनिंग बिहाइंड हिम.
उसके पीछे दूसरे लड़के भाग रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर क्लैपिंग फॉर हिम। चिल्ड्रेन उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आई एम क्लैपिंग फॉर हिम ऑल्सो। ओके, मैं उसके लिए भी ताली बजा रहा हूँ। ओके, वाई आर यू नॉट क्लैपिंग फॉर हिम? आप उसके लिए क्लैपिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसके लिए ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ fill in the blanks with the present continuous forms of the verbs given in the brackets. ब्रैकेट्स में दिए गए verbs के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म के साथ आपको ब्लैंक को क्या करना है? फिल करना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो किया गया है और अभी प्रेजेंट में क्या एक्शन हो रही है इसको आपको राइट डाउन करना है। सो टर्न योर पेज। फर्स्ट इज पिया ब्लैंक इन द पार्क। ओके, ब्रैकेट में दिया है वर्ब, मेन वर्ब प्ले। ओके, पिया सिंगुलर नाउन। ओके, सो राइट डाउन इज, हेल्पिंग वर्ब इज प्लेइंग। प्ले के साथ आपको ing यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब राइट डाउन लिखना है। ओके, पिया इज प्लेइंग इन द पार्क। Now next, Hari and Rohit blank on the bench and in bracket sit. So Hari and Rohit, these are plural noun. So here are sitting, sit plus ing, SITTING, sitting on the bench. Number 3, grandma and grandpa blank to each other in bracket talk. Okay, grandma and grandpa again plural noun, so right here are talking, talk plus ing, talking, are talking to each other. grandma और grandpa एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Now next, Shami and Sunita blank home and in bracket walk. Okay, Shami and Sunita, these are plural nouns, so right here are main verb walk plus ing. So Shami and Sunita are walking home. शमी और सुनीता घर चल रहे हैं। ओके, नंबर 5, I blank my homework. एक्शन वर्ड दिया है यहाँ पे डू। ओके, मेन वर्ब है यहाँ पे डू। सो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? एम। आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। नंबर 6, आवर टीचर ब्लैंक ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, इन ब्रैकेट राइट। आवर टीचर सिंगुलर noun, so here is writing, write plus ing on the blackboard. ई को आपको रिमूव करना है और वहाँ पे ing राइट डाउन करना है। Our teacher is writing on the blackboard. Again I repeated, Priya is playing in the park. Number 2, Hari and Rohit are sitting on the bench. Number 3, grandma and grandpa are talking to each other. Shami and Sunita are walking home. I am doing my homework. And number 6, our teacher is writing on the blackboard. Question number B, the past continuous tense. Okay. Question number B, we will read it. Past continuous tense. Past means भूतकाल। ओके, जो क्रिया हो चुकी थी या मतलब हो चुकी थी। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो क्रिया भूतकाल में हो रही थी। ओके, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में हो रही थी। ओके, अंडरस्टूड।
Now here example, yesterday evening the children were playing in the park. Ram was skating. Simi was sitting on the grass with her friends. Some people were jogging on the jogging track. Yesterday evening, कल शाम मतलब कल evening, children were playing in the park. Children पार्क में खेल रहे थे. Okay? Here action happening in the past मतलब जो क्रिया पर्टिकुलर टाइम में हो रही थी. ओके. राम वॉज स्केटिंग. राम स्केटिंग कर रहे थे. सिमी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास विथ हर फ्रेंड्स. सिमी अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रास पर बैठी थी. सम पीपल वर जॉगिंग ऑन द जॉगिंग ट्रैक. कुछ लोग जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे थे. Understood everyone about action happening in the past. Okay, now we read past continuous tense. Okay, next, all these things were happening yesterday morning at 6 o'clock. Fill in the blanks with the correct past continuous forms of the verbs given in the brackets. Now here यहाँ पे सभी चीज़ें कल सुबह 6 बजे हो रही थी. अंडरस्टूड. ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एस्टरडे मॉर्निंग एट 6 o'clock. यहाँ पे जो पैसेज में आपको दिया है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है, इसमें जो भी एक्शंस हो रही मतलब हो गई थी वो कल सुबह की है. ओके, मतलब एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट. ओके, ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स के सही करेक्ट मतलब जो भी सही पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है उसके साथ आपको ब्लैंक्स को यहाँ पे फिल करना है. द सन ब्लैंक शाइन. पास्ट है तो आपका वॉज और वर आएगा. ओके, जब हम लोग प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, ठीक है, तब हम लोग एम इज आर का यूज़ करते हैं. और जब हम लोग पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं तब हम लोग वॉज और वर का यूज़ करते हैं. ठीक है. ओके, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज प्लस मेन वर्ब आईएनजी. ओके. नाउ द सन ब्लैंक शाइन. द सन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम लोग वॉज करेंगे. ओके. देन शाइनिंग आईएनजी. शाइन के साथ आपको आईएनजी वर्ब यहाँ पे राइट डाउन करना है. ई को रिमूव करना है. SHINING शाइनिंग. द सन वॉज शाइनिंग. सन शाइनिंग कर रहा था मतलब चमक रहा था. द रूस्टर ब्लैंक ब्रैकेट क्रो. द रूस्टर सिंगुलर नाउन सो वॉज क्रोइंग मतलब मुर्गा बांग लगा रहा था. मतलब जब मॉर्निंग होती है तब मुर्गे की आवाज़ आती है. ओके, मीन्स ये माना जाता है कि मुर्गे की आवाज़ आना मतलब सुबह हो गई. ओके, सो द रूस्टर वॉज क्रोइंग. द बर्ड्स, अब यहाँ पे प्लूरल है, बर्ड्स है तो हम लोग वर का यूज़ करेंगे. द बर्ड्स वर लुकिंग फॉर वॉर्म्स. ब्रैकेट में लुक दिया था इसलिए लुक के साथ आईएनजी आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. द बर्ड्स वर लुकिंग फॉर वॉर्म्स. जो बर्ड्स थे वो कीड़े की तलाश कर रहे थे. ओके, कीड़े को देख रहे थे. डैडी ब्लैंक वाटर द गार्डन. ओके, इन ब्रैकेट वाटर. डैडी अगेन सिंगुलर सो वॉज वाटरिंग. वाटर प्लस आईएनजी. द गार्डन. ओके, डैडी वॉज वाटरिंग द गार्डन. डैडी गार्डन में पानी दे रहे थे. नेक्स्ट, ग्रैंडपा ब्लैंक ब्रैकेट सिट ऑन द लॉन. ग्रैंडपा सिंगुलर सो राइट हियर वॉज सिटिंग आईएनजी लगाना है सिट के साथ. ऑन द लॉन. ओके, ग्रैंडपा वॉज सिटिंग ऑन द लॉन. ग्रैंडपा लॉन में बैठे थे. ग्रैंडमा ब्लैंक इन ब्रैकेट ड्रिंक अ कप ऑफ टी. ग्रैंडमा सिंगुलर सो राइट हियर वॉज. ग्रैंडमा वॉज ड्रिंकिंग
ड्रिंक के साथ ing करना है आपको, तो वो हो जाएगा ड्रिंकिंग। ओके, अ कप ऑफ टी, ग्रैंडमा एक कप चाय पी रही थी। मम्मी ब्लैंक इन ब्रैकेट मेक ब्रेकफास्ट, मम्मी सिंगुलर, सो राइट हियर वॉज, मम्मी वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट। मेक में ई है, ई को रिमूव करना है। ओके, रिमूव करके आपको स्पेलिंग MAKING, मेकिंग। मम्मी वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी। राहुल एंड हिज सिस्टर वर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ओके, ब्रैकेट में गेट दिया है तो आपको गेटिंग लिखना है। राहुल एंड हिज सिस्टर, दीज आर प्लूरल्स। ओके, सो राइट हियर वर गेटिंग, राहुल और उसकी सिस्टर स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स एक्शन हैपनिंग नाउ। ओके, एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस it means action happening in the past. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ing, इट मीन्स इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, फिर मेन वर्ब के साथ आपको ing यूज करना है। ये आपको कहाँ पे करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम, इज, आर प्लस ing। ओके, देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये होता है आपका एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट। ओके, मतलब जो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी। सो पास्ट होने के कारण आपको यहाँ पे वॉज और वर प्लस ing का यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट गो वन स्टेप फॉरवर्ड। ओके, बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।